सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। नमस्ते भाई और बहनों। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं विश्व में जिनका इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों में आने की क्षमता रखता है। मैं इस वीडियो में आई विल ट्राई टू एड्रेस मैनी ऑफ द थिंग्स domestic and international which I normally don't talk about in my videos, but a lot of things have changed even over the last 36 to 48 hours. I will try to be as apolitical as possible. Raghav Chadha and his team, 7 persons, leaving the Aam Aadmi Party and joining the BJP, it's something which has come as a lot of surprise to people. I feel saddened to see what has happened, but it may be a master stroke by BJP to try and split the Aam Aadmi Party, strengthen the BJP as it gets ready to face the elections in Punjab. So it's kind of a guerrilla warfare. It is something that there is a lot beneath the lines, beneath the headlines that probably people are unaware of. बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। पंजाब के इलेक्शन आ रहे हैं और ये हो सकता है बीजेपी का ये भाजपा का ये प्रिपरेशन हो, क्योंकि पाठक और चड्ढा ने काफ़ी रोल प्ले किया था आपके जीत में लास्ट टाइम पंजाब इलेक्शन में। वो खुद नहीं जीते हैं लेकिन उन्होंने रोल प्ले किए थे, तो काफ़ी उनकी जानकारी है। तो ये बीजेपी का एक ऑपरेशन लोटस जो भी कहे, एक तो ये। दूसरा, बंगाल में बहुत इलेक्शंस हैव बीन एट अ वेरी हाई टर्नआउट रेट, 80 to 90% जो टर्नआउट्स में देख रहा हूँ। इट कुड पार्शली रीजन कुड बी बिकॉज ऑफ द डिलिमिटेशन exercise and other things, but one of the whether this can all lead to an anti-incumbency vote, मेरे ख्याल से फाइट काफ़ी क्लोज रहेगा। भाजपा ने काफ़ी एफर्ट्स यहाँ भी डाले हैं। इट इज़ पॉसिबल अगर एक बंगाल में विक्ट्री मिल जाती है तो ये बीजेपी बिकम्स मच स्ट्रॉन्गर एट द सेंटर। ओके, these are all things that, and once BJP becomes stronger at the center, meaning they now have more capability to go through their reforms more aggressively, which would also be likened by the stock markets. Third is Tamil Nadu, that also important state. There has been a wave of an anti-Dravidian wave that has been there for quite some time now. Slowly it has grown. And you also have new entries, Vijay and Seeman. This may cut into the Dravidian vote in any event. And it is also possible that, and what we study and understand is from Trichy to Chennai, there has been some more anti-Dravidian wave. That means the northern part of Tamil Nadu. Now, if all this cuts into the Dravidian vote, DMK vote, and somehow AIDMK and BJP do benefit, whatever happens over there, that can be another factor that can give fillip to the BJP and again strengthen them in overall national ratings. And that also could be positive as far as stock markets are concerned. But we'll have to wait and see. It's not so simple because Vijay is not the perception of the public कि खुद वो जीत सकेंगे पूरा इलेक्शन, वो एक क्वेश्चन मार्क रहा है। ठीक है, तो वो इतना इजी नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसको भी ध्यान में रखने की आवश्यकता ज़रूर है। तो ये बातें बताई। और एक चीज़ जो चल रही है जिस पे मेरा फोकस काफ़ी रहा है, ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये शायद कोई कवर नहीं करेगा, लेकिन मैंने आज आपको बीनीथ द सरफेस क्या चल रहा है वो बताया। और एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है,
जो चल रही है वो टॉक्स जो श्योर नहीं है इस्लामाबाद में होने की संभावना है नहीं है बिटवीन ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पर उनके जो ईरान का जो डेलीगेशन आया है एकदम टॉप मोस्ट तो खैर नहीं है, लेकिन जो आए हैं उन्होंने जैसे कि ईरान्स फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची landed in Islamabad just around midnight, and within a few minutes past that, he was greeted by Pakistan's top mediators, the Field Marshal, Mr. Asim Munir, as well as Pakistan's foreign and interior ministers. And what happened next was unusual by the expected norms of diplomacy. Ye bhi beneath the lines I am reading and giving you. They plunged into an all-night talks that ended as the sun was coming up. Okay, almost 5 hours later. तो काफ़ी रात को गतिविधियाँ हुई हैं और ये माना जा रहा है कि स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर जो कि सन इन लॉ है प्रेसिडेंट ट्रम्प के, they will also be joining shortly on Sunday, I believe. तो ये काफ़ी रोमांचक रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ हेडवे हो जाता है, कुछ भी हेडवे हो जाता है, तो ये भी वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए पॉजिटिव रहने की संभावना है। रातों रात ईरान अभी तक कह रहा है कि हमारा कोई भी एजेंडा में नहीं है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ टॉक्स। लेकिन अगर ये कुछ भी हो जाते हैं और टॉक्स में कुछ भी फ्रूटफुलनेस होने की संभावना हो दिखाई देती है, जेडी वैंस वाइस प्रेसिडेंट भी स्टैंड बाय पे हैं, अगर कुछ हो जाता है तो वो भी फ्लाई करेंगे, तो ये सब अच्छा रहेगा। अब क्या अच्छा नहीं रहेगा भारतीय मार्केट वगैरह में, ये भी एक और चीज़ मैं कहूँगा जो कहीं भी कवर नहीं होगा, शायद कहीं नहीं किसी ने कवर किया होगा। पाकिस्तान का इतना ग्रोइंग एम्फसिस एज अ मीडिएटर, मतलब इतना इम्पोर्टेंस अगर बढ़ते जाएगा तो इट इज़ नॉट वेरी ग्रेट बिकॉज अमेरिका इज़ गेटिंग अ लिटिल मोर अलाइंड टुवर्ड्स पाकिस्तान विच हैज़ नॉट बीन वेरी गुड टू इंडिया इन टर्म्स ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ एंड ऑल दैट। अगर वो इतने इम्पोर्टेंस में आ जाते हैं अमेरिका के आंखों में तो ये भारत के लिए इतना अच्छा नहीं होता। अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ये चीज़ थोड़ी सी आप खुद समझ सकते हैं। मैंने आज के इस वीडियो में काफ़ी पॉलिटिकल चीज़ों को भी किया है, प्लीज़ इसको आप कंट्रोवर्शियल मान सकते हैं, ये मेरी थिंकिंग है, लेकिन ये सब थिंकिंग का काफ़ी इफेक्ट आने वाला है भारतीय स्टॉक मार्केट्स के ऊपर आगे चल के, नेक्स्ट वीक उसके भी आगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आपको संभाल के लेना है। एक एक चीज़ का इम्पैक्ट आएगा, कब आएगा, कहाँ आएगा, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। वीडियो को संक्षिप्त रखता हूँ, लेकिन जो मैंने आपको फूड फॉर थॉट दिया है, व्हाट आई हैव गिवन यू टुडे इन दिस वीडियो इज समथिंग आई होप इज़ वेरी वैल्यूएबल। ईच ऑफ दीज विल हैव इम्पैक्ट्स at different timelines. Okay, that's why you are seeing the stock market is not going up in a straight way, it's not falling down in a straight way, but there will be a net cumulative effect of all these things, and that is going to come very soon. You will see the market gain direction one way or the other very shortly. I am a little more optimistic than others, but I have told you that even in my optimism, there will be you cannot assume this is going to be the beginning of a major bull run, but yes, there will be some good period that will come, but time to time it may get interrupted by certain events, and I think Pakistan's roles as a mediator will also have some impact. Okay, तो आप ज़रूर ज्वाइन करिए हमारा कमोडिटीज़ ग्रुप, जो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और मेजर ऑयल आजकल इतना अच्छा कवर कर रहे हैं हम लोग, या फिर प्रीमियम प्लस 10-12 दिन प्रेडिक्शन से एडवांस में अच्छी मल्टीपैगर्स, सिंपल एक और एक ग्रुप है प्रीमियम वैल्यू, जिसमें हम बहुत अच्छा आपको 1 वीक का प्रेडिक्शन दे रहे हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी के लिए संपर्क करने का नंबर वही है 9820861044। नमस्ते।